Okay, good evening, church, and welcome to our midweek service. And we have an amazing service today. Okay, we will hear from one of our missionaries, Pastor Manoj, and also we'll have an introduction message from Christopher. It's going to be a very special service. I encourage you to continue to be tuned to this beautiful service. I was just thinking as we begin this service, I was thinking about Psalms and Psalm 32. And I think about Psalms, and you read every Psalm, and every morning I think many of us would read Psalms. But Psalms are a great healing to our hearts. That whenever you hear a Psalm, it just stirs your heart up. It encourages you. It lifts you up. It's like the medicine for the problems that we go through in life. So I was thinking about this Psalm 32, where is a promise given, in a sense, where David was going through so many things in his life. In verse 6, for this cause, everyone who shall be godly, he says, to pray in a time when you may be found. Surely in the flood of great waters they shall not come near him. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. Wow, I was just thinking about this thought. Like God gives us a hiding place, like in the times of trouble, and He puts a song in our mouths. And that we could praise God in the midst of everything that could happen around us. I was thinking about Paul and Silas in the prison. In Acts chapter 16, they could sing praises to God because God is the one who puts those songs in our mouths, because we have a good God who takes care of us in the midst of all that we go through. And we could call upon Him and He would answer. Amen. So we have a great expectation this beautiful evening. Amen. Let's pray as Sherry comes to worship. Well, Father, we just thank you for this beautiful, beautiful service. We pray that you would speak to us and anoint our evening in a very special way, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live
every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Let's worship the Lord as we go through trials in our lives, the storms that come across. Only Jesus is able to still those storms. Lord, we thank you. The trials of situations, the trials of sickness, the trials of finances, Lord, the trials of pandemics, Father. You are the one, Lord, who still those storms. We worship you. My soul, it Christ alone. Know His part in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Yes, Lord, we just thank you today. We worship you, Lord. You're a good, good Father. Lord, you opened the Red Sea. All you said to Moses is to be still and see the salvation of the Lord. Lord, you parted the Jordan River for Joshua and the nation of Israel. Lord, we believe in you today. We worship you, Lord. Help us to be still in our storms of life. Help us to look to you, that you are able in the midst of the storms. You have authority over the storms. You came walking on those storms, Father. We trust you today. We exalt you today, Lord. We worship you, Lord. Help us to see you in the midst of everything that's happening around us, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
exalt your name today, Lord. Lord, you are able. You are able. You are able. You are able to, Lord. Lord, we thank you. We worship you today. We worship you, Lord. Thank you for this beautiful time of worship as we exalt you, Lord, today. Lord, anoint our evening today in a very special way, Father. We know, Lord, you are a God who stills the storms. Lord, who could walk on those waters, who could part the Red Seas. Lord, you could stop the flowing rivers of Jordan. Lord, whatever may be today in our lives, whether it's sickness, whether it's trials of finances, whether the trials of fear, for the future or for the present. Lord, we just commit everything into your hands. Help us to see above the storms. And Lord, look to you, Father. We thank you. We exalt you. Give us a beautiful, beautiful time today. In Jesus' most precious name we pray. Amen. सबको जय मसीह की। मेरा नाम जसपाल है। मैं एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा ऑफरिंग मैसेज है। आइए हम वचन में जाएंगे और मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 19 में पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर हेडिंग है स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, यहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हो और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना ही काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो इस हेडिंग के बारे में मैं सोच रहा था। पहला जो ना अध्याय 5 वचन 19 के अनुसार पूरी पृथ्वी पर शैतान का राज है, पर आज हम कहाँ के वासी हैं? अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार हम लोग स्वर्ग के वासी हैं। और पहला जो रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 14 के अनुसार परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के वारस बना दिया गया है। तो जब हम स्वर्ग के हैं, हमारी स्वर्ग की सोच होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी स्वर्ग में है। उसकी सोच कैसी है? तो धरती पर रहते हुए हमारा धन कहाँ पर है? धरती पर नहीं है, स्वर्ग में है। तो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है देने के लिए। और याद रखिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। जहाँ दान और दशवांश की बात होती है, उनको दशवांश के साथ शब्द देना जो है वो जुड़ा हुआ है। उसको मुझे नहीं लगता कि हम लोग अलग कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर परमेश्वर का मन रखते हैं, परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा दिया, तो फिर हमारा मन देने का क्यों नहीं हो सकता? हमें भी परमेश्वर का मन रखना है, देने वाले बनना है। प्रभु ने कहा, मेरे जो लोग हैं वो लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें देने की आशीष दी हुई है। आज हमें बाइबल के अनुसार पता है कि हमें सही जगह पर अपना दान और दशवांश कहाँ देना है, ताकि लोगों की सहायता हो सके। अपने भाई बहनों की जो प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए हमें देना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है, प्रभु यही चाहता है कि हम दें, चाहे वो हमारा समय हो, हमारा हृदय हो। जिंदगी के हर क्षेत्र में परमेश्वर चाहता है कि वहाँ पर भी परमेश्वर का मन हो, और परमेश्वर का मन हमेशा देने का रहा है। तो हमारा मन भी देने का होना चाहिए। तो अपना दान और दशवांश जो है खुले दिल से परमेश्वर के मन के अनुसार दीजिए। परमेश्वर को आपका धन दौलत नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। और याद रखिए, देना परमेश्वर की आज्ञा है, दशवांश देना परमेश्वर की आज्ञा है। और प्रभु कभी भी हमसे जो लेता है वो उधार नहीं रखता, हमें वो कई गुना करके वापस करता है। तो मैं उत्साहित करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है देने की, तो अपने दिल से खुश होकर दीजिए, और परमेश्वर के अनुग्रह हमेशा आप लोगों को बना रहे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। जय मसीह की सभी को। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
तेरी जय जयकार यीशु, तेरी जय जयकार करें। तेरी जय जयकार यीशु, जय जयकार, तेरी जय जयकार करें। तेरी जय जयकार यीशु, जय जयकार, तेरी जय जयकार करें। हाथों को उठाकर कहें, ताली बजाकर कहें, हाथों को उठाकर कहें, ताली बजाकर कहें, जय जयकार, 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 जय जयकार। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का है प्रभु। बदरू है भागे उसके नाम से, क्योंकि जिंदा है मेरा यीशु। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का है प्रभु। बदरू है भागे उसके नाम से, क्योंकि जिंदा है मेरा यीशु। हाथों को उठाकर कहें, ताली बजाकर कहें, हाथों को उठाकर कहें, ताली बजाकर कहें, जय जयकार, 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 जय जयकार। रोगी को चंगा करे, मुर्दों को करे जिंदा। यीशु ही वो नाम है जो करता पाप क्षमा। रोगी को चंगा करे, मुर्दों को करे जिंदा। यीशु ही वो नाम है जो करता पाप क्षमा। नाचते गाकर कहें, सबको सुना कर कहें, नाचते गाकर कहें, सबको सुना कर कहें, जय जयकार, 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 जय जयकार। Thank you. Good evening, church. The title of my message is Love Covers a Multitude of Sins. I'll read a verse from 1 Peter chapter 4 verses 7 and 8. It says, the end of all things is near. Therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sin. So here Peter is telling the churches in Asia to encourage them during a time of difficulty. He is telling them to be self-controlled and alert because the devil is waiting to attack us like a roaring lion. Today let us look at the statement when Peter asked the Christians to be clear-minded and to be self-controlled so that they can act properly considering the end of all the things is near. So one day we will soon meet
the one who made us. So sooner or later, we all must die or be ready for the return of Jesus. So here Peter is talking about the end of things, end of all things, end of this world. So with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the Lord will come. The day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, and the elements will be destroyed by fire and earth and everything in it. The world which we all know will be gone forever, and what will remain is our spirits. Jesus' return is near at hand, writes Peter, because it could come at any time. We Christians should expect it and indeed look forward for His return. For Christians, the end of the world is not a bad thing. We are living in a world that is under a curse because the effects of sin, war, disease and poverty. But God has something better in store for each one of us. Do you know why we will never be satisfied and at rest in this world? Because we were not made for this world. We were made to live with God in a new world. So if we know the end of all things is near at hand, what should we do? We should get ready. Peter encourages the Christian to clear their minds of distractions and to be mentally disciplined so that they can communicate with God and hear what God is telling them. There are a lot of distraction around us and we may miss what God is telling us to do. We need to be ready to hear from God. This becomes more challenging as we get busy with our life. If we are successful at a job, we need to make sure that we have some time with God on a daily basis. So Peter is telling Christians to make sure to love one another fervently, earnestly and intensely. So why is this so important? The Bible says that love is like that connective tissue that holds the parts of the body together. Without love, the church body will not be able to hold together and function. It is love that holds us together and builds us up. So love is like an oil in an engine. It is absolutely essential to have love. So today all of us have different gifts, abilities and passion. If we are not careful to love, we may become prideful of what God has given us and look down on those who do not have the same abilities or same passions. We may judge others on the points where we are strong but others are weak. We may be able to control our tongue and always say the right thing. That's great. But we should not look down on those who struggle with this or judge them. We may be excellent at serving others and love to work hard, but we should not look down on those who are not able to work for long or those who are not able to work hard. So each of us has our own strength and weakness, but if we have love, we will work together to build one another up. Paul says knowledge puffs up, but love builds up. Love looks out for the interest of the others and seek to share their burden. This is why Peter says that above all else we must love one another. This love does not come easily. We must allow the Spirit of God to work in us so that we may love one another with His love and not our own. You cannot love everyone naturally. God's love is costly.
Peter, Paul, and John, they all used a special word for love, and that is found in the New Testament, and that love is called agape love. Yes, and this agape love is the love that comes from God. It is a costly love. When we love one another, we fulfill the requirements of God's law. We will not do harm. Instead, we will build them up. This love covers a multitude of sins. Today, Satan uses bitterness to destroy the church. None of us are perfect, and we all make mistakes. But love of God will protect us from the schemes of the enemy. We must be aware of what Satan's plan is. Therefore, continue to love one another deeply. I want to conclude this by saying what Peter said. Let us be clear-minded. Don't be distracted by things in this world, but listen to God's voice. Be ready to meet Him. Love one another as God first loved us. Remember, God's agape love is costly, but we can love this way with the help of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Christopher. That was a wonderful introduction. Okay, so let's welcome Pastor Manoj. Okay, many of you know Pastor Manoj and Shalini. Shalini used to work in our school, in Ambassador High School, Waliv, and both of them are Bible college students, and God put in their hearts to be missionaries. And a few years back they moved to Jalod in Gujarat, and they are amazing missionaries. They are just awesome. They have a wonderful church in Jalod, and he also oversees the work in Gujarat and MP, and also Dahod and Dakor, and it's amazing. He's a great leader and also great man of God, and it's awesome to have him preach to us today in Masai. So let's welcome Pastor Manoj as he comes to bring forth the word for us. Amen. प्रेज द लॉर्ड सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर किशोर को कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस मिडवीक सर्विस में परमेश्वर के वचन से बांट सकूं। तो सबसे पहले धन्यवाद पास्टर किशोर, GGF वसई वेस्ट, और धन्यवाद देते हैं इस संदेश को देखने वाले सभी लोगों के लिए। मैं उत्साहित करना चाहूँगा कि आप बने रहें अंत तक, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा ज़रूर आपसे बातें करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ ये संदेश को सिर्फ सुने ना, परंतु अपने जीवन में इसको इस्तेमाल भी करें, क्योंकि ये संदेश एक आम संदेश नहीं है, किसी मनुष्य के वचन नहीं है, किसी मनुष्य के थॉट नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर का वचन है। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, इस वचन के लिए। और होने दे पिता परमेश्वर, मेरे मुख को छू, इससे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो विषय है परीक्षाओं में। हर एक विश्वासी जिन परीक्षाओं में से गुजरता है, कई बार हम बहुत 3 स्तर हैं या 3 एरियाज हैं हमारी लाइफ के जिनसे हम परीक्षाओं में गुजरते हैं, और हर एक विश्वासी के जीवन में वो परीक्षाएं आती हैं। और यहाँ तक कि यीशु मसीह भी उन परीक्षाओं में से गुजरा, लेकिन बोलता है, बाइबल बताती है इब्रानियों का 4:15 में कि वो हमारी तरह परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है
कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परखा गया हमारी तरह, लेकिन निष्पाप निकला। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमेशा ये ध्यान दे रहे हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं, उसके नक्शे कदम पे चल सकते हैं और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जितनी भी उसकी शिक्षाएं हैं और उसका स्वभाव, उसका चरित्र हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव में बदलना है और ये हम खुद से नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य है। पर जब हम परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से हर एक बात का उत्तर देते हैं, तो परमेश्वर हमें इस परीक्षाओं में सामर्थ्य प्रदान करता है। तो बाइबल बताती है कि जब हम सोचिए, जब कभी भी हम किसी परीक्षा में पड़े या किसी तरीके की परेशानी में है, तकलीफ में है, तो थोड़ा सा पीछे जाएं और सोचें कि अगर यीशु मसीह इस स्थान पे होता तो क्या करता। और उस तरीके से हम अपने जीवन को बोलते हैं कि परीक्षाओं में सामना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में जब परीक्षाएं आई, मत्ती का 4 अध्याय और उसकी 3री और 4थी पंक्ति से आगे आप पढ़ सकते हैं। 3री पंक्ति में कि परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। किसका पुत्र है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाए। और हम जानते हैं ये पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की हुई और उसने कहा कि हम जानते हैं उत्तर क्या था। 4थी पंक्ति में यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। तो आज मैं इन 3 क्षेत्र में, 3 एरियाज में, हम जिस परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हम 3 एरियाज में किस तरीके से हम उन परीक्षाओं से बच सकते हैं या उसमें हम स्थिर रह सकते हैं, इस विषय पे हम बात करेंगे और कैसे एक विश्वासी इनका प्रत्युत्तर दे सकता है। जैसे यीशु मसीह ने वचन से दिया, वचन हमारा क्या है? एक केंद्र बिंदु है। हमें हर एक चीज की शुरुआत वचन से और हर एक चीज का अंत वचन पे होना चाहिए। तो मैं आपके सामने वर्ष 3 में, जैसे कि बाइबल यहां बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की योजना में इस धरती पे आया, हम जानते हैं। और ये क्यों यीशु मसीह इस धरती पे आया? उसका कारण ये था कि एक आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और उस आदम की वजह से पाप इस जगत में आ गया और पाप जगत में आने की वजह से पाप सारी मनुष्य जाति में फैल गया और पाप फैलने की वजह से बोलता है कि मृत्यु आई। आज हम जो मरते हैं, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी अनंत काल के लिए नहीं है शारीरिक रूप में, तो लेकिन परमेश्वर ने हमको अनंत काल के लिए बनाया था। तो जब हम ये जो मृत्यु है हमारे जीवन में, वो हमारे पाप के वजह से आती है। उससे पहले मृत्यु नहीं थी जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु इस जगत में आ गई। और बोलते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बना करके उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय में हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने 6ठे दिन आदम को बनाया और फिर उसको क्या किया? अदन की वाटिका में रखा, फिर उसके लिए हवा बनाई, उसके पत्नी, और फिर उसके बाद उसने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो, अधिकार में कर लो। तो ये पृथ्वी जो है मनुष्य के अधिकार में थी, आदम के अधिकार में थी, लेकिन आदम के पाप करने की वजह से वो अधिकार शैतान के हाथ में चला गया और वो अधिकार आज शैतान के हाथ में है। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पे आया तो बोलता है कि वो उस अधिकार को वापस लेने के लिए आया था। और यहां पर जब यीशु मसीह उस अधिकार को लेने के लिए आया तो परमेश्वर बोलता है कि उसने मनुष्य का रूप धारण किया और बोलता है कि मनुष्य की समानता में बन गया। अगर आप फिलिपियों का 2 अध्याय पढ़ेंगे और 5वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने, बोलता है कि अपने आप को शून्य किया, वह हमारे लिए शून्य हो गया। तो पहली परीक्षा उसकी यहां पर हुई। तो बोलता है शैतान इस बात को जानता है कि यीशु मसीह के पास सामर्थ है,
तीसरी पंक्ति में आप जब पढ़ेंगे तो उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाए। तो शैतान हमेशा हमारे उस पॉइंट को छूना चाहता है जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो उसने आदम और हव्वा से भी यही बात की थी। उसने कहा था कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन अवश्य उसके तुल्य हो जाओगे, है ना। पहले ही परमेश्वर ने उत्पत्ति का 1:26 और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। पहले से ही आदम और हव्वा परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए थे। लेकिन क्योंकि शैतान ये डाउट हमारे मन में लेकर के आता है, डाउट बोलता है कि उसने वो संदेह लेकर के आया और हव्वा ने क्या हुआ, संदेह का क्या किया, उत्तर दे दिया। और उसने कहा कि ओके ठीक है, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। उसने परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुना नहीं, और वचन हमारे जीवन में यदि नहीं है तो हम अपनी परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह सकते, हम अपने परीक्षाओं का उत्तर नहीं दे सकते। तो यहां पर बाइबल बोलती है कि शैतान बखूबी जानता था कि यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है कि वो पत्थरों से भी रोटियां बना सकता है, और रियली उसके पास वो सामर्थ है। उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़े के पैर को ठीक किया। उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर के पास ये सामर्थ है। उसने जब 5000 लोगों को रोटी खिलाई तो 2 मछली 5 रोटियां खिलाई, और बोलते 5000 नहीं, वो 10-12 हजार लोग थे। तो कैसे वो खिला पाया, वो परमेश्वर है। तो वो पत्थर से भी रोटी बना सकता था, लेकिन बोलता है कि शैतान चाहता था कि वो अपनी सामर्थ को अपने लिए इस्तेमाल करे, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपने लिए अपने सामर्थ को इस्तेमाल करने नहीं आया था। यीशु मसीह इस दुनिया में आया था मनुष्य जाति के लिए, और उसने जो भी अपनी सामर्थ का इस्तेमाल किया मनुष्य जाति के लिए किया, मनुष्य बन करके। और बोलता है कि उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, लेकिन उसने अपने लिए किसी भी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया, स्वयं के लिए। उसमें बोलता है कि तो यहां पर एक प्रिंसिपल है जो हम देख सकते हैं, यदि हम अपनी सामर्थ को जो हमें परमेश्वर ने दी है, हम जानते हैं हमारे अंदर जो सामर्थ है, हमारे अंदर जो बुद्धि है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो बोलते हैं कि मन है, हृदय है, वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। एक विश्वासी के पास एक नया मन है जिसे परमेश्वर ने उसको दिया है। तो बोलता है जब एक विश्वासी परमेश्वर के सामर्थ को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, या स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल, अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करता है, तो वो पाप है। एक व्यक्ति को हमेशा अपनी सामर्थ का इस्तेमाल परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। और यहां पर यीशु मसीह के पास सामर्थ है, लेकिन वो अपनी सामर्थ को परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उस सामर्थ का इस्तेमाल करेगा। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसको क्या किया, जवाब दिया। तो आज हमारे पास भी वो निर्णय लेने का समय है कि जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है, कोई तकलीफ आती है ना, तो हमें उसका उस समय पे अपनी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं करना। नीति वचन 3:5 बोलता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, वन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख और वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उस समय में, परीक्षा की घड़ी में भी परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना जरूरी है। अगर जब हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहेंगे तो शैतान जब हमारे जीवन में परीक्षा लेकर के आएगा, हम अपनी सामर्थ को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं देखूंगा कि क्या इस कार्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है, क्या ये कार्य परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है या नहीं, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, हमें ये जो महिमा जो शब्द है, बोलता है कि महिमा देना त्रिएक परमेश्वर को। दूसरी जो उसने परीक्षा की वो मिलेगी आपको मत्ती का 4 और 5वीं और 6ठी पंक्ति में। मत्ती का 4, 5 और 6 पढ़ सकते हैं हम लोग। यहां पर लिखा हुआ है यहां लिखा है
और उसमें कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वाह, यहाँ पर दूसरी परीक्षा है। बोलते हैं कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। तो बोलते हैं कि 3 तरीके से आदमी परखा जाता है। और यहाँ पर बोलता है कि स्वयं की महिमा, है ना, स्वयं की महिमा के लिए वो बोलता है कि तू क्या कर, अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। और वो बोलता है कि तेरी एड़ी में पत्थर से ठेस नहीं लगेगा। एक्चुअली उत्पत्ति के 3 अध्याय में मैं ऐसा सोचता हूं कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की और वो बोलता है कि इस स्त्री का बीज क्या करेगा, इस तेरे फन को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, उसकी एड़ी में चोट लगेगी। और यहां पर परमेश्वर बोलता है, शैतान बोलता है यीशु मसीह से कि तेरी एड़ी में, बोलते हैं कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी, नहीं होगा कुछ। तू क्या कर, अपने आप को साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कई बार हमारे जीवन में एक विश्वासी होने के नाते हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं विश्वासी हूं अपने कर्मों के द्वारा। हम अपने विश्वास के द्वारा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, बाइबल बोलती है ना। तो धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। यूहन्ना का 16:14 से 15 में, मत्ती का 4:4 में और मत्ती का 3:17 में बोलता है कि कोई भी त्रिएक परमेश्वर में कोई भी अपनी महिमा स्वयं नहीं करता है, तीनों एक दूसरे की महिमा करते हैं, है ना। पुत्र पिता की महिमा करता है मत्ती 4:4 में, कि लिखा है परमेश्वर के वचन से क्या होगा, हमारा जीवन चलेगा, हम बचाए जाएंगे। दूसरी चीज, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके बाहर आता है मत्ती के 3 अध्याय में, तो पिता क्या करता है, आकाशवाणी करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। पिता अपने पुत्र की महिमा करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा, यूहन्ना के 16:14-15 में पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है। तीनों एक दूसरे की महिमा करते हैं, लेकिन स्वयं की महिमा कोई नहीं करता है। और शैतान उसको क्या करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। वो बोलता है कि तू साबित कर कि तू मसीहा है। बोलते हैं, वो कहने का मतलब है कि तू क्या कर, अपना आप को गिरा दे और लोग क्या करेंगे, तुझ पे तुरंत विश्वास कर लेंगे। क्योंकि वो जो ऊंचाई थी वो 600 फीट ऊंचा वो कंगूरा था। अगर वहां से यीशु मसीह गिरता तो लोग कहते कि अरे ये सच में ये इंसान नहीं है, ये सच में परमेश्वर है। क्योंकि इंसान यहां से गिरने के बाद बच नहीं सकता, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह वहां से गिरने के बाद मर नहीं सकता। तो लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं मसीहा हूं, है ना। मैं परमेश्वर की योजना में ये साबित करूंगा कि मैं मसीहा हूं, खुद के कार्यों के द्वारा नहीं, परमेश्वर की परीक्षा करने के द्वारा नहीं, कि मैं परमेश्वर की परीक्षा करूंगा, परमेश्वर मुझे बचा। कई बार एक विश्वासी इस तरीके से कई बार परमेश्वर के सामने शर्तें रखता है और वो कहता है कि परमेश्वर मुझे बचा, है ना, या परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर। लेकिन हमें परीक्षा करने की जरूरत नहीं, हमें शर्तें लगाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। यहां पर बोलता है, वचन बोलता है कि यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर पिता की परीक्षा ना ले। मैं मसीहा हूं, मैं साबित करूंगा परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर ने जो मेरे बारे में लिखा है उसके द्वारा मैं साबित करूंगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया वो मीका 5:2 में कि वो बैतलहम में पैदा होगा, यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा। लिखा है कि वो अंधों को आंखें देगा, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। ये कहीं नहीं लिखा है कि वो कंगूरे से गिरेगा और बच जाएगा। तो जो लिखा नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। वेरी सिंपल। अगर बाइबल में नहीं लिखा है, एक विश्वासी को नहीं करना है, दैट्स इट, खत्म, है ना। हमें और उससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जब मेरे मन में इस तरीके के विचार आते हैं, इस तरीके की भावनाएं आती हैं, मुझे उन चीजों को नहीं करना है। मैं अपने भावनाओं के आधार पे नहीं, एक विश्वासी अपने भावनाओं के आधार पे नहीं जीता है, एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है, परमेश्वर को महिमा देता है, खुद को नहीं, और ना ही खुद को साबित करने की कोशिश करता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में चलता है, ऑलरेडी साबित हो जाता है।
बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तो एक विश्वासी का जीवन एक दीवट का जीवन होना चाहिए कि हम सबको दिखाई दें और हमारे द्वारा सबको प्रकाश मिले। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार हमें हमारे जीवन में निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमें अपने वचन के आधार पर। तीसरा जो है वो है परमेश्वर की योजना के बाहर जाकर, बोलता है कि परमेश्वर की योजना के बाहर जाकर परमेश्वर के कार्य को करना पाप है, जो कि आपको मिलेगा 8वीं और 10वीं पंक्ति में। यीशु मसीह को क्या किया, वो मंदिर पे ले गया, है ना, और वहां बड़े ऊंचे पर्वत पे ले गया और वहां से उसने पूरी दुनिया का राजपाट दिखाया। और दिखाने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि यदि तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह के साथ में वो क्या कर रहा है, शर्त रख रहा है। यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह अधिकार लेने के लिए वापस आया है, लेकिन वहां पर शैतान कहता है कि तुझे क्रूस पे जाने की जरूरत नहीं है, तुझे अपना लहू बहाने की जरूरत नहीं है, तुझे वो जो संबंध टूटने वाला है क्रूस पे लोगों के पाप की वजह से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में 3 घंटे, वो संबंध भी नहीं टूटेगा। तुझे क्या करना है, सिंपल साधारण, तुझे सिर्फ मुझे झुक के प्रणाम करना है और मैं ये सारा राजपाट तुझे दे दूंगा। लेकिन बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा कि शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर पिता को छोड़ और किसी की महिमा ना कर। इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे जीवन में आता है दिखा दूं सबको, लेकिन बाइबल बोलती है कि महिमा आदर प्रशंसा के योग्य सिर्फ एक ही है और वो है परमेश्वर। तो यहां पर बोलते हैं कि यीशु मसीह उससे बच सकता था। शैतान ने उसके जीवन में बहुत अच्छी परीक्षा डाली थी फंसाने के लिए। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देनी होगी कि अगर यीशु मसीह वैसा नहीं करता, हम जानते हैं, और ना ही कभी करेगा। लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे एक बात बोलता हूं कि यीशु मसीह यदि उस समय झुक के प्रणाम कर लेता, शायद उसको अधिकार मिल जाता, लेकिन इच्छा किसकी पूरी होती, शैतान की। शायद यीशु मसीह उससे झुक के प्रणाम कर लेता, अधिकार मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, लेकिन महिमा किसको मिलती, शैतान को। उसी तरीके से यदि मेरे जीवन से महिमा प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिलती, परमेश्वर को नहीं मिलती है, और इच्छा परमेश्वर की पूरी नहीं होती है, और योजना परमेश्वर की पूरी नहीं होती है, तो मुझे उस कार्य को नहीं करना है। क्योंकि बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह आसान रास्ता चुन सकता था, है ना, लेकिन यीशु मसीह ने आसान रास्ता नहीं चुना। यीशु मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर की योजना के बाहर जाकर एक तिनका भी नहीं उठाऊंगा, एक कार्य भी नहीं करूंगा। और यीशु मसीह ने वहां पर उस तरीके का स्वभाव दिखाया, और यीशु मसीह वहां पर हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहली, और उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर एक भी कार्य नहीं किया। एक विश्वासी को अपने जीवन में निर्णय लेना बहुत जरूरी है। क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं, क्या उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी? क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर की योजना में है? इंपॉर्टेंट है। यदि ये सवाल मेरे मन में नहीं उठते हैं और मैं कुछ भी कर देता हूं और मैं इस बात को नहीं सोचता हूं कि परमेश्वर का काम है ये, लेकिन अगर परमेश्वर का काम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं होगा तो ये पाप है। और शैतान यीशु मसीह से वही पाप कराने वाला था, लेकिन यीशु मसीह ने उस पाप को नहीं किया। हम जानते हैं यीशु मसीह पाप कर ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज है, एक विश्वासी होने के नाते कई बार शैतान अविश्वासियों के जीवन में भी ये पाप लेकर के आता है, ये परीक्षा लेकर के आता है, और वो आज अविश्वासियों को, इस दुनिया में लोगों को आसान रास्ता दिखा रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि 2 मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है और एक सकरा मार्ग है, और बहुत सारे उससे प्रवेश करते हैं जो चौड़ा मार्ग है, जो विनाश की ओर जाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सकरे मार्ग से प्रवेश करते हैं, वो परमेश्वर की योजना का मार्ग है।
वो परमेश्वर के वो क्रूस का मार्ग है, वो लोगों को उद्धार का मार्ग है लोगों के लिए, और लोग उसके द्वारा उद्धार पाते हैं। लेकिन शैतान उनको शॉर्टकट दिखाता है, कहता है ये कर्म करो तो तुम स्वर्ग जाओगे, है ना। और वो इस शॉर्टकट रास्ते में लोगों को क्या करता है, फंसा के रखता है, और लोग परमेश्वर की योजना से भटक जाते हैं। यदि मैं कर्मों के आधार पर स्वर्ग के राज्य को हासिल करना चाह रहा हूं, ये परमेश्वर की योजना के बाहर है, और वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। इसलिए शैतान हर एक व्यक्ति को मन में ये भावनाएं डालता है, परमेश्वर की योजना से बाहर ले जाने के काम, परमेश्वर की योजना से बाहर ले जाके उनसे क्या करता है, इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन कई बार एक विश्वासी के जीवन में भी हो सकता है कि वो शैतान क्या करता है, उसको परमेश्वर की योजना से बाहर लेकर के जा सकता है। हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर, लेकिन मुझे हर समय ये पूछना जरूरी है, क्या ये परमेश्वर की योजना है। जैसे आप देख सकते हैं न्यायों की किताब में समसून नाम का एक व्यक्ति है, उसने परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर कार्य किया। हम जानते हैं उसकी आंखें फूट गई, उसके बाल कट गए, है ना। और बोलता है कि उसे कोलू की जगह पे, बैल की जगह पे उसको रखा गया और वो कोलू में डाला गया। बोलता है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर के वचन से परखे यदि किसी कार्य को करता है, वो व्यक्ति बोलता है कि अपना सामर्थ खो सकता है। हम जानते हैं समसून परमेश्वर के पास है, स्वर्ग में, लेकिन उसने वहां पर अपना सामर्थ खो दिया। उसने बोलता है कि वो अंधा हो गया, है ना, और वो परमेश्वर के महान कार्य को नहीं देख पाएगा। तो जब हम परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर कार्य करते हैं, जो कि शैतान का एक षड्यंत्र है एक विश्वासी के लिए भी, और वो क्या करता है, वो हमको फुसलाना चाहता है, बहलाना चाहता है, हमको लेकर के जाना चाहता है उसमें, ताकि हम परमेश्वर की योजना से बाहर जा सकें और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना कर सकें, परमेश्वर की महिमा ना कर सकें। इसलिए वो हमको क्या करता है, उससे बाहर लेकर के जाता है। दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, परमेश्वर की योजना से बाहर जाके पाप किया, काम किया, और वो पाप कर दिया। और उसने बोलता है कि वो पाप को अपनी सामर्थ का भी उसने गलत इस्तेमाल किया। उसने उरिया को मरवा दिया अपनी सामर्थ का गलत इस्तेमाल करके। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सोचते, हम परमेश्वर की योजना में नहीं सोचते, हम पाप करते हैं। हम जो भी कुछ सोचेंगे वो पाप होगा। यदि मेरी थिंकिंग, मेरी सोच, मेरे विचार वचन के अनुसार नहीं है, इट मीन्स वो रॉन्ग है, गलत है, वो पाप है। अगर मेरे विचार वचन के अनुसार हैं, जैसे कि पास्टर स्टीवंस ने भी कहा, थिंकिंग विद गॉड, और पास्टर खाल हमारे लिए एक उदाहरण है कि उन्होंने हमारे सामने उस तरीके का जीवन जिया है, वचन का जीवन जिया, परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन जिया, परमेश्वर की योजना में जीवन जिया, और परमेश्वर की इच्छा में उन्होंने हर एक कार्य को किया है। तो हम उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं, और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, पास्टर काल को। बहुत बार क्या बोल नहीं सकते। एक विश्वासी को क्यों परमेश्वर की योजना में बने रहने का है? एक विश्वासी को एक सैनिक की तरह हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि एक विश्वासी एक युद्ध में है। अब ये परीक्षा एक समय की नहीं है, एक दिन की नहीं है, एक घंटे की नहीं है। ये परीक्षा हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती है। इसलिए हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें एक सैनिक की तरह हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में हैं। इफिसियों का 6 अध्याय 12वीं पंक्ति से लेकर 18वीं पंक्ति तक। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं, हमें बुद्धिमानी से बोलना है। यदि हमारे मन में कोई विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों को परखना बहुत जरूरी है कि वो विचार कहाँ से आ रहा है, कौन है उसका स्रोत, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी होने के नाते। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर उत्साहित करना चाहूंगा कि हमें अपने जीवन में हम परीक्षाओं में स्थिर रह सकते हैं यदि हमारा सोचने का, विचार करने का
केंद्र बिंदु परमेश्वर का वचन हो, और यदि हम परमेश्वर की महिमा के विषय में सोचें, हर दिन हम ये सोचें कि क्या इस कार्य में परमेश्वर को महिमा मिलेगी, क्या मेरे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, क्या मेरे इस कार्य की वजह से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। अगर ये सारी चीजें हम सोच करके प्रतिदिन अपने जीवन में निर्णय लेंगे, हम उन परीक्षाओं में स्थिर रह सकते। तो मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें स्थिर रहने की जरूरत है। ये समय है, हम खाली होते हैं, कई बार हमारे जीवन में उस तरीके का स्वभाव हो सकता है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें स्थिर रहने की जरूरत है। तो परीक्षाएं हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, और हम कह सकते हैं लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो हमें बाइबल को जानना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। इस संदेश के द्वारा तू प्रत्येक व्यक्ति से बातें कर, और होने दे पिता परमेश्वर की तू हमें अगुवाई कर, सहायता और मदद कर इस वचन के अनुसार चलने के लिए, और ताकि हम परीक्षाओं में स्थिर रह सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से बातें कर पिता परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और इस कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। ग्रेट ग्रेस वसे बेस्ट पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पास्टर किशोर के जीवन के लिए, उनकी सेविकाई के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सु दीदी को, एंड्रू को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनको भी इस समय प्रोत्साहन करना, उनके मम्मी डैडी को भी, पास्टर काल के मम्मी डैडी को भी तो प्रोत्साहित रखना पिता परमेश्वर, शांति देना पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। Okay, we heard two amazing portions. Okay, let's close our eyes and bow our heads and pray this season for the church, and also that we will be able to open up to begin our live services back. Okay, let's pray. Let's quieten our hearts and believe God for an amazing answer to prayers. Like we've been praying that the storm will go away from Mumbai, and God answered our prayer, and God protected the city of Mumbai, and God answers our prayer that this pandemic would go away, so that we will gather again, and people would like take away the fear in people's hearts about this fear of corona. Okay, let's pray. Father, we just thank you for this beautiful worship. Thank you for the amazing portions from Pastor Manoj and Christopher. We thank you, Lord. We just pray that today as a church, we pray today, Father, that you would especially, Lord, give us a breakthrough from this coronavirus, Father. We just pray that you would remove all kinds of fear that the enemy has put in the hearts of men around the world. We just pray that you would remove that fear, and Lord, that things would be opened up, that we could meet again for our church service, Lord, in fellowship, Lord, and we could, Lord, sense the presence back into the body of Christ, Father. We just pray, Lord, with you all things are possible, Father. We believe that, and also we pray that you keep all our church members safely, protect them, keep their jobs, Father, and Lord, provide our every need in the midst of all that's happening around us. We thank you, we worship you, Lord. Give us a beautiful week ahead, and a great Sunday service, and a great rap to follow in the evening. In Jesus' name we pray, amen and amen.